Okay. So in yesterday lecture, we already started the what is meant by system programming and what are the types of software. That means system software and application software. Okay. In first 5 to 10 minutes, we again revise the yesterday lecture, and then I will start the next topic of SPOS subjects. Okay. So yesterday I started first unit. Its name is introduction. Okay. So yesterday we already studied about the system definition. So what is meant by system? System is a collection of component. So example is college. Okay, so one department is also example of system. Okay. Then next definition is the programming. So programming is a way to instruct the computer to perform various tasks. And what is meant by system programming? So system programming is an art of designing and implementing the system program. ओके सो ये दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन वो अगेन कौन से डेफिनेशन में आएगा? सिस्टम प्रोग्रामिंग में. ओके. Then next definition is the what is meant by software? So software is a collection of many programs. Or again one more definition of software is collection of instruction. Okay. Then so this is the basic definition and we know about the software. Okay. आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं. वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है. सो सॉफ्टवेयर ये जितने भी कुछ ऑटोमेशन होता है कंप्यूटर में हम जो भी इंस्टॉल करते हैं हम बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर. ओके. लेकिन मेन पॉइंट हमारे लिए क्या है कि उसकी कैटेगरीज क्या है कि कौन से सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कौन से सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को असिस्ट करेगा. ओके. सो इट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड जो सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक गोल के लिए होता है उससे हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा के लेते हैं. सो इट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. So what is the example of system software? So very beautiful and important, or we can say the favorite example of system software is the operating system. And next example of system software is the assembler. Again compiler, it is also one of the system software. Any hardware driver, it is the example of system software. Okay. So these all are the system software. And application softwares are media player, Adobe Reader, or Word, Excel, PowerPoint. These all are the application software. Okay. So already हमने system software की definition देगी. Okay. So a program must be translated before it can be executed. So जो भी program है पहले वो क्या होता है उसको execute होने के लिए पहले उसको क्या होना होता है? Translate होता है. Okay. So ये जो भी गिवन डायग्राम इसमें हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ये लोकेट कहाँ होते हैं. ये हम जो यूजर है वो सो यूजर क्या करेगा? यूजर कनेक्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्ट टू सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. और फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है कि वो क्या करता है हार्डवेयर के साथ क्या करता है कनेक्ट करते हैं और यूजर का जो भी एप्लीकेशन है उसका टास्क क्या करता है परफॉर्म करवा के देता है. ओके. सो यहाँ पर जो भी यूजर है वो यहाँ पर कुछ सपोज यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा सपोज अभी यहाँ पर पीपीटी है. सो ये प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बनाया. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड देन यहाँ पर क्या होगा मैं उस फाइल को सेव करे. सो फाइल सेव करने के लिए ये सब चीजें मुझे कहाँ पर मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे जहां पर मैं फाइल सेव करे उसको एक्चुअल लोकेट करके उसमें मेमोरी है या नहीं वो सब चेक करने का काम कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड देन वो क्या होगा हार्ड डिस्क में वो क्या वो फाइल सेव हो जाएंगे. ओके. सो अगेन इन डिटेल में हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एन एप्लीकेशन इज अ जॉब और टास्क यूजर वांट्स टू अकम्प्लिश थ्रू अ कंप्यूटर. And again application software are a program that help a user perform a specific task. Okay. So we develop this application software using any programming language, then we can say the C++. Okay. So application software interacts with the system software. And what is meant by system software?
System software is a type of a computer program that's designed to run a computer hardware and application program. So this is the basic definition of system software. So सबको ये learn करनी है. मैं again revise करती हूँ इस definition को. System software is a type of a computer program that is designed to run a computer hardware and application program, and it controls the computer hardware. Okay. So this is all about the application software and system software. So यहाँ पर मैंने जानबूझ के यहाँ पर application software and system software में थोड़ा सा theory parts दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी बुक्स है या नहीं जो भी है तो आपको भी पढ़ने के लिए theory मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखा है. ओके, सो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट डिफरेंस है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इज द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम. एंड व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Application software is a type of a software which runs and a user request it run on the platform which provided by system software. मतलब जो प्लेटफॉर्म सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा उसी के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क होते हैं. सो अनदर मीनिंग में हम क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये खुद वर्क नहीं होता. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने के लिए इसको क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है. Another point is the development language. So development language में क्या है कि इन सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डेवलप इन लो लेवल लैंग्वेज. जनरली जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कौन से लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज. तो यहाँ पर जो भी असेंबली लैंग्वेज इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. एंड यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं, यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज. दैट इज द एग्जांपल ऑफ सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. ये these all are the high level language. Then usage. So system software is used for operating computer hardware. Okay, and application software है क्या है, used by the user perform specific task. Then fourth task is या fourth parameter है कि installation क्या है. So system software are installed on the computer when operating system is installed. जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगी तो उसी के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट. मतलब यूजर अपने अपने हिसाब से क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करता है, रन. अगर मेरे पीसी में क्या है, पीडीएफ नहीं वर्क हो रहे थे, मैं क्या करूंगी, एडोब रीडर को क्या करूंगी, इंस्टॉल करूंगी, लाइक दैट. देन नेक्स्ट है यूजर इंटरैक्शन. तो यूजर इंटरैक्शन क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिक टू सिस्टम हार्डवेयर, सो लेस और नो यूजर इंटरैक्शन अवेलेबल इन केस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो ज्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पर यूजर इंटरैक्शन ज्यादा नहीं होता. मतलब कितने लोगों को पता है कि अभी हम हमारे जो भी प्रोग्राम हम रन करते हैं उसके बैकग्राउंड में असेंबलर भी वर्क होता है, नो नहीं पता. देन डिबगर अभी ठीक है, डिबगर आप कंपाइलर यूज करते थोड़े बहुत नाम पता है, लेकिन उसके साथ एक्चुअल इंटरैक्शन नहीं होता. लेकिन वही अदर साइड में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता है कि हम इंटरैक्ट, यूजर इजीली इंटरैक्ट कर सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द dependency. So system software can run independently. It provides the platform for running application software. So हर time system software ये क्या करता है, it run the independently and it provide the platform to running application software. So actually system software ये platform provide करता है application software को run करने के लिए. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये dependently होता है. मतलब हमेशा application software is depend on system software. Okay, so last point, example. So what are the example of system software? मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इसके एग्जांपल क्या है, कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर, ये सब इसके एग्जांपल है. और इसके एग्जांपल क्या है, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर, ये सब किसके एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, देन वन मोर थोड़ा सा एक अलग है कि अभी मैंने हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बताया. जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, एंड लो लेवल लैंग्वेज में क्या डेवलप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो हाई लेवल लैंग्वेज का मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया ताकि अगर आपको लाइव दिखाई देता है यहाँ पर तो समझ में आएगा जल्दी. सो व्हाट आर द हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, ये सब है. अभी ये जो भी एग्जांपल है वो सी प्लस प्लस का है.
लो लेवल लैंग्वेज इस टाइप का, जो भी असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। और एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, एंड वी कैन सेट दी नहीं ओके ये मशीन कोड है जो कि 1010 के फॉर्मेट में, तो ये क्या है एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड है, मतलब डायरेक्टली एक्सी फाइल है, मतलब ये डायरेक्टली रन होगा। सो ये सिर्फ क्या है लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल, लो लेवल एंड एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ओके नेक्स्ट है what are the component of system programming? Okay, so first component is a text editor, loader and linker. Third component is assembler. Fourth is compiler. Fifth is macro and microprocessor. Then debugger, interpreter, device driver and operating system. So ये सब जो भी कंपोनेंट है इसके हर एक के ऊपर एक एक शॉर्ट नोट भी आ सकती है, या आगे जाके उसको डिटेल में भी ये जो भी लोडर, लिंकर, असेंबलर, माइक्रो कंपाइलर, माइक्रो, ये तो आगे सब डिटेल में है ही। ठीक है, सो अभी जो भी नेक्स्ट अभी जो लेक्चर है इसमें मैं हर एक के बारे में 1 or 2 स्लाइड एक्सप्लेन करने वाली। ओके सो लेट्स स्टार्ट यूज फ्रॉम द टेक्स्ट एडिटर। ओके so what is mean by text editor? It is the best example of text editor is the notepad. So text editor is a program used for editing plain text file. Okay, so with the help of this text editor we can write the program. Okay, so we can also write here the example of text editor is the notepad. Okay, और अगेन हर लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस के जो भी टूल है, पाइथन है, हर लैंग्वेज एक अपना अपना टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट जो भी कंपोनेंट है वो है लोडर। तो लोडर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स द ऑब्जेक्ट कोड एज अ इनपुट एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। ओके सो एक्चुअली वर्क ऑफ लोडर इज इट लोड्स द program into the memory and it initiate for the execution. So it is the main task of loader. Okay, so there are 4 functions of loader. First one is the allocation, second one is the linking, second one is third one is the reallocation, and last one is the loading. Okay, so what is the use of first function? So for use of first function is it allocates the memory for user program. Okay, after that linking is done, and after that if reallocation is in program then reallocation is done, and last step or last function is the loading, that means actual loading. Okay, next third component is assembler. So assembler is nothing but the translator. So यहाँ पर assembler की जगह पर translator ये भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर translator वर्ड लिखा है और यहाँ पर लिखा है input assembly language program, output machine language, तो भी okay. Okay, so what is the assembler? Assembler is one of the component of system program. Okay, so yeah, system software ऐसा बोल सकते हैं। So this is the first point. Second point, input of assembler is the assembly language program, and what is the output of assembler? Output of assembler is the machine language or object code. Okay, so this is the only, so यहाँ पर just introduction है कि what are the different component of system software. Then next है again in detail में assembler, assembly language is a symbolic representation of machine language. So machine language मतलब पूरे 101 फॉर्मेट नहीं, उसका symbolic representation है। symbolic मतलब क्या है, जैसे कि move, read, write, इस टाइप का जो भी है तो उसको बोलते हैं symbolic representation. Okay, so ये जो भी symbolic representation है it is called the mnemonic. Okay, what is called mnemonic? So mnemonic to represent each low level machine instruction or operation. Okay, so अगर मुझे कोई डेटा मूव करना है तो यहाँ पर वर्ड यूज होता है मूव. ओके, देन अगर कोई डेटा रीड करना है तो यहाँ पर लिखते रीड, प्रिंट करना है तो प्रिंट. ओके, देन असेंबलर विथ डिफरेंट सिंटैक्स फॉर पर्टिकुलर सीपीयू और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. तो ये जो भी पॉइंट है ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है. तो इंफॉर्मेशन क्या है
कि असेंबलर का सिंटैक्स हर टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सीपीयू के ऊपर डिफाइन होता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। ओके, अगर प्रोसेसर चेंज है, अभी आपने मैक्रो प्रोसेसर ये जो भी थर्ड सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, तो जहां पर 8086 8085 इसमें थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि असेंबलर विद डिफरेंट सिंटैक्स फॉर पर्टिकुलर सीपीयू और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। So for example, an instruction to add a memory data to a register. So अगर 86 फैमिली का प्रोसेसर है तो इसमें ऐड की इंस्ट्रक्शन, अभी इंस्ट्रक्शन सेम है, हमें क्या करना है, ऐड करना है मेमोरी में, मेमोरी डेटा टू रजिस्टर में क्या करना है, ऐड करना है। सो इस केस में क्या आएगा, ऐड EX EBX। सो ये दिस इज द सिंटैक्स फॉर 86 आर्किटेक्चर। लेकिन वही अगर मुझे दूसरे इसमें लिखना है AT सिंटैक्स में, तो इसका कैसे आएगा, ADL। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि कैसे डिफरेंट सिंटैक्स चेंज होते हैं, लेकिन ये यही है। तो यहाँ पर जो भी है आपके SPOS में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट यूज होने वाला है, वो रेफरेंस बुक, SPOS के सिलेबस में रेफरेंस बुक अवेलेबल है, दमदारे करके रेफरेंस बुक अवेलेबल है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है वही हमें यूज करना है। जो अभी मैं इंस्ट्रक्शन भी आपको एक्सप्लेन करने वाली कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्थ कंपोनेंट इज द कंपाइलर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हमारा जो भी टॉपिक स्टार्ट है वो है कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। So fourth component is the compiler. So what is mean by compiler? Compiler also work as a translator. क्यों ये translator? क्योंकि ये भी क्या कन्वर्ट करता है, it convert the high level language into the low level language. So compiler को input क्या होता है, high level language, जैसे कि C++ का प्रोग्राम, and then it converts it, ये कंपाइलर क्या करता है, कुछ एरर अगर है तो वो भी जनरेट करता है। कंपाइलर बहुत सारे अभी स्टूडेंट आपको पता ही है क्योंकि आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हैं, ओके, कंपाइल किए हैं। तो कंपाइल के टाइम अगर कुछ एरर है तो वो एरर दिखा देते हैं, अगर आप कंपाइल करते हैं, अगर कुछ एरर नहीं रहते तो कंपाइल सक्सेसफुल ऐसा मैसेज आता है, देन वो प्रोग्राम किस में कन्वर्ट होता है, लो लेवल लैंग्वेज में। ओके, So for example, this is the example of high level language, then compiler यहाँ पर work होगा and it convert the, ये क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज में। आफ्टर द लो लेवल लैंग्वेज ये किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में। सो कंपाइलर के बाद किसके पास जाना चाहिए, उसने असेंबलर में, है ना। असेंबलर क्या करेगा, देन मशीन कोड में क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, देन फिफ्थ कंपोनेंट इज द मैक्रो प्रोसेसर। ओके, सो फर्स्ट है कि व्हाट इज मीन बाय, ये तो है मैक्रो प्रोसेसर। सो प्रोसेसर आपको पता है कि जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, जो प्रोसेस फॉलो करेगा। अभी मैक्रो मतलब क्या, जो भी रिपीटेड टास्क है वो हमें एक ही इसमें लेना है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मैक्रो। सो इट अलाउ द प्रोग्राम टू राइट अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। सो ये प्रोग्रामर को क्या अलाउ करता है कि शॉर्ट हैंड मतलब छोटा प्रोग्राम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल लिंक आपको करनी, ये जो भी कंसेप्ट है, आप जो भी सब रूटीन, और वी कैन सेट द फंक्शन, सो फंक्शन के साथ उस मैक्रो को रिलेट करो तो कंसेप्ट इजी समझ में आएगा आपको। ओके, मैक्रो अलाउ अ सीक्वेंस ऑफ अ सोर्स लैंग्वेज कोड टू डिफाइन अ वंस एंड देन रेफर टू बाय नेम ईच टाइम इट इज टू बी रेफर्ड। सो हम एक ही बार कोड लिखेंगे और बार बार उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब भी उसकी जरूरत है। After the each time this name occurs in a program sequence of code is a substitute at that point. जब भी वो प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, वो कोड वहां पर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मैक्रो का नाम दिया है यहाँ पर strg, यहाँ पर मैक्रो और यहाँ पर strg चाहिए था। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर ये एग्जांपल है मैक्रो strg। सो ये मैक्रो का एग्जांपल है। तो यहाँ पर कितने लाइन से, 3 लाइन से, और ये एंड किया। ओके, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करना है, strg। सो इसका ऐसा आप सोच सकते हैं कि मुझे ये 3 लाइन्स रिपीटेडली लगने वाली थी, 2 टाइम्स। तो बार बार में ये लिखने से बेटर रहेगा, मैंने क्या किया, इसका एक मैक्रो क्रिएट किया
और जब भी जरूरत है तो मैंने उसको क्या किया, कॉल किया। अभी मैं 100 टाइम्स उसको क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती। ओके, नेक्स्ट है डिबगर। So debugging tool helps a programmer to uh, debugging tool helps a programmer for a testing and debugging program. So debug का आपको यूज पता है कि अगर मुझे कुछ मेरा प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है, अगर कुछ सिंटैक्स वगैरह एरर है तो तुरंत कंपाइलर क्या करता है, वो एरर को थ्रो करता है, आप रीड करके उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लॉजिकल एरर है, उसको फाइंड आउट करना है, तो वी कैन यूज द डिबग। या कौन सा भी अगर प्रोग्राम में डिटेल में स्टडी करनी है, कौन सी वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसका यूज होता है, डिबगर का। ओके, so it provides some facility setting the breakpoint, displaying the values of variable. Okay, next component is the interpreter. So what is meant by interpreter? So interpreter read the source code, one instruction or line, and the at this time line मैम into a machine code. Just a minute गोविंदा, एक लास्ट के 10 मिनट्स में मैं सबको क्वेश्चन ले लूंगी। So interpreter reads the source code, one instruction or line at this time line into machine code or some intermediate form. So what is mean by interpreter? So interpreter ये भी किसका काम करता है, इट कन्वर्ट दी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू दी लो लेवल लैंग्वेज। सो कंपाइलर भी तो वही टास्क करता है। फिर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस है? दोनों का, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों का टास्क सेम है, इनपुट दोनों को सेम आ रहे हैं, लेकिन दोनों के फंक्शनलिटी में डिफरेंट है। सो क्या डिफरेंस है? कंपाइलर मैम में क्या, इंटरप्रेटर बाइट कोड जनरेट करता है। नो 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 नो, इंटरप्रेटर का काम वही होता है, मैंने बताया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों के आउटपुट सेम होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो भी वो क्या करता है, होल कोड को क्या करता है, डायरेक्टली स्कैन करके देन वो इस एरर को थ्रो करता है। वैसे इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय, पहले सपोज ये लाइन, हाँ राइट, लाइन बाय लाइन क्या करता है, जो भी एरर है उसको थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लाइन है पूरी, तो यहाँ तक अगर एरर है तो वो तुरंत इंटरप्रेटर वो एरर थ्रो करेगा और स्टॉप हो जाएगा। वैसे कंपाइलर में क्या होता है, पूरा कोड पहले क्या होता है, स्कैन होते ही चेक हो जाता है, उसमें एरर रहता है, और एट द एंड पूरे लाइन के साथ क्या आ जाते हैं, उसके एरर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है एरर की, और तुरंत एरर भी फायर होते हैं। वैसे कंपाइलर में एट द एंड एरर क्या होते हैं, फायर होते हैं। ठीक है, लास्ट है, लास्ट कंपोनेंट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो operating system is a system software so that manage the computer hardware, software resources and provide the common services for computer program. So operating system के बारे में हम अगेन डिटेल में जाने वाले हैं आपके लास्ट थर्ड यूनिट के बाद में। ठीक है, सो जितने भी कंपोनेंट अभी हमने स्टडी किए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो हर एक हम इंडिविजुअली डिटेल में अभी आगे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले। ओके ओके, एक लास्ट पॉइंट है कंपोनेंट का, डिवाइस ड्राइवर। सो ज्यादातर ये जो भी स्टूडेंट है, आप जो भी कुछ पीसी अगर नया लेते हैं, कुछ ड्राइवर अगर इंस्टॉल करना है, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि सिर्फ हार्डवेयर लगाने से फायदा नहीं होता, आपको क्या करने पड़ता है, उसके ड्राइवर भी क्या करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल a particular type of device that attached to a computer. Okay, so after the device driver, next topic is the need of system software. So what is the need of system software? So first need is the, to run the application software we require the system software. Okay, then next need, it provides the foundation for an infrastructure software that links and manage the hardware, network and software together. मतलब सबको लिंकिंग करने के लिए, हार्डवेयर मैनेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ओके,
जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास हार्डवेयर है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है तो उस हार्डवेयर का कुछ भी यूज नहीं है। सो सॉफ्टवेयर में कौन कौन से इंक्लूड है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर एंड सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज, ये सब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर इंक्लूड करने के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। तो जो भी बेस्ट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अभी जो हर एक के पीसी में होता है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द असेंबली लैंग्वेज। ओके, सो अभी ये जो भी यूनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक था कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीट है। अभी इसका जो भी यूनिट का थर्ड जो भी थर्ड पार्ट है एलिमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो इसके अंदर हमें पढ़ना है असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, बेनिफिट ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड सिंपल असेंबली स्कीम एंड पास स्ट्रक्चर। ये अभी हमें इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ओके, सो एक बार इस टर्म को स्टार्ट करते हैं, देन आपके क्वेश्चन आंसर लेती। ओके, सो मैंने पहले ही आपको बताया व्हाट इज द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? निमोनिक इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इट इज द लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सो असेंबली लैंग्वेज अगर ये पढ़ना है तो उसके पहले मुझे कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट टर्म है लोकेशन काउंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है एलसी। ओके, सो इसका यूज क्या है? इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो लोकेशन काउंटर का यूज क्या है? इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है वो है लिटरल। सो इट ट्रीट एज अ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि हम सी प्लस में कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो कांस्ट जो भी वेरिएबल है, मतलब a इज इक्वल टू 2 अगर लेते तो a की वैल्यू हर टाइम क्या रहेगी? कांस्टेंट 2 ही रहेगी। वैसे यहाँ पर कांस्टेंट को कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यहाँ पर लिटरल। ओके, नेक्स्ट टर्म है सिंबल। सो जो भी हम सी में उसको वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में उसका क्या नाम है? सिंबल्स। मतलब जो भी वेरिएबल एंड सिंबल के जो भी नाम है इसको क्या बोलते हैं हम? सिंबल्स। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर। सो जो भी मेथड्स एंड फंक्शन असेंबली लैंग्वेज में यूज हो गए, सो इट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। ओके, सो मेथड एंड फंक्शन इज नथिंग बट द प्रोसीजर। ओके, सो लास्ट के 6 मिनट्स है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अटेंडेंस देने। सो किसी को कुछ डाउट है?